Thank you very much. Now I am going to discuss about different type of numbers and the rules of divisibility. So first warm up. What is the even number? The number when divided by 2 with 0 remainder is known as even number. Example, just say 2, 10, 4, 6, 8 and 1 digit number. 2 digit number 10, 12, 14, 16, 18 and goes like up to 98, 2 digit number. 100, 102, 104, 106, 998, it's 3 digit. These are the even number from 1 digit, 2 digit and 3 digit. Means the number start from 10, ends at 98 at the interval of 1. Similarly, 3 digit number start from 100, goes up to 998 with a difference of 1. That's very, very important to note it. The odd number. The number other than even numbers are not divisible by 2 with the remainder is known as the odd number. माने आप कह सकते हैं कि number after the even number is a odd number. Just see, after 0, 1 comes, after 2, 3 comes, after 4, 5 comes, and so on. Similarly, after 10, 11 comes, after 12, 13 comes, after 14, 15 comes. Similarly, after 100, 101 comes, 102, 103 comes, 104, 105 comes, like this. You can generalize like this. The odd number simply mathematically can generalize even number plus 1. And the successor of even number is known as odd number. Odd number. Other way you can also say that the even number is equal to odd number minus 1. Precedent of the odd number is even number. So simply, if you remember only one number, even number, you can find out odd number. If you remember odd number, you can find out even number. By adding to even number is a odd number, subtracting 1 from the even number is a odd number. जैसे कि even number plus 1, odd number minus 1, even number. अब just यहाँ पर देखिए. What is the prime number? That is very, very important. It has only 2 factors, namely 1 and the number itself. और ये आपका जो है odd भी हो सकता है, even भी हो सकता है. Just see, 2 ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर 1 भी होगा और नंबर itself. 3 है, 1 भी है, 3 भी है, 17 भी है, इसका 1 भी फैक्टर है, 17 itself. तो ये आपका जितने नंबर यहाँ दिए गए हैं ये 1 डिजिट कर दिया गया है, 2 डिजिट कर दिया गया है. एंड आई विल आस्क द टीचर टू टेल द स्टूडेंट टू राइट 3 डिजिट नंबर. अब 3 डिजिट नंबर में क्या होगा? 111. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. 119 example, because 111 factor is 1 and number itself. 119 number itself and 1. So ये प्राइम नंबर का कंपोजिट नंबर. अब देखिए, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर. ये ध्यान रखिएगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. 4 में क्या फैक्टर है? 1 भी है और 2 2 बार आया है, तो इसलिए 3 मोर देन 2 हो गया. 6 में देखिए आपका 1 2 3. 8 में देखिए 1 2 2 2. 1 भी फैक्टर है और 2 इज कमिंग 3 टाइम्स विच इज मोर देन 2. यानी कहने का मतलब कि प्राइम नंबर जो होता है उससे ज्यादा एक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होगा. जो है नोट, 0 and 1 आर नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. 0 में ऐसा नहीं हो सकता, ना इसमें हो सकता है. बिल्डिंग फैक्टर 3, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Unless the student does not know the table or factorization method, they cannot make the tree. Just see, or consider 8 as a number. You should know that 8 is coming 2 4 8 or 4 2 8.
So here written 2 fours are. Now one can also can write as 4 into 2. Reverse. Again 4 is coming in, 2 to the 4. Just see, 2 to the 4. एक्सटेंड 2. अब देखिए 2 into 2 into. This is how 2 3 is formed. Both are correct, but a student should know the table of 1 to 10 or 1 to 20 at least, if the 3 should be formed from 1 to 20. अब देखिए, अब एग्जाम्पल दिया गया है, फार्म द फैक्टर ऑफ 18. अगर आप स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग दैट इन विच टेबल 18s आर कमिंग, दे कैन नॉट फार्म द टेबल. 3 6 18, 3 through the 6 extend it, or even you can make like this, 18 आप 6 यहां लिख दीजिए and 3 right here, no problem. Then again 3 to the and then 3. So table should be known, and I have given you question. Build, यहाँ पर L होना चाहिए. Build a factor tree of the following numbers. अब 12, 36, 50, 72, 72, 81. All this number is coming in the tables from up to 20. तो 20 तक याद होना चाहिए. नहीं याद है तो कम से कम देखिए 72 है, एक 10 तक याद होना चाहिए. अब देखिए, encircle even number and tick the odd numbers in the followings. बहुत सिंपल है. आपको even numbers meaning I have already told you, odd number हमने already बता दिया है. For example 12 is the even number, इनको सर्किल कर दीजिए. 25 is the odd number. Similarly completed. Question 3. Write all prime and composite numbers below 30. अब 30 में कुछ तो हमने यहाँ पे बता दिया है. देखिए, प्राइम नंबर में बिलो 30 मतलब 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19. और 19 के बाद क्या आता है? 20, नॉट 21, नॉट 23, नॉट 23 आ जाता है. फिर 25 नहीं आता, 27 नहीं आता, 28 नहीं आता, 29 कम आता. तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया. एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कंपोजिट नंबर. अब देखिए, राइट 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 1. अब आप यहां पर आ जाइए. आपको प्राइम नंबर फाना है जिसका डिफरेंस 1 हो. अब देखिए, अब 2 और 3 है जिसका डिफरेंस 1 है, तो आंसर हो गया. जो है 5 7 का डिफरेंस 2 है, ये नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिए. तो यू शुड नो टू डिफाइन द प्राइम नंबर. अब देखिए, अब इज द सेकेंड नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर. अब देखिए, अब क्या करा, whether 7 is a factor of this or not. So what you have to do, you divide this by 7. If remainder is 0, then it is a factor. If remainder is not 0, it is a not a factor. अब देखिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. ये आपको बहुत सावधानी से याद रखना चाहिए. रूल 1 क्या है कि एनी नंबर विद वंस डिजिट, जो पहला डिजिट है, अगर 0 है, 2 है, 4, 6, 8 है, तो वो डिवाइडेड बाई 2. अब देखिए, यहां 4 है, 8 है, 4 है, 2 है, 4 है, 0 है. ऑल आर नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. तो नंबर के लास्ट में इनमें से कोई एक होना चाहिए. रूल 2, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3. अब देखिए, नंबर दिया गया है, अगर इसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी से डिवाइड हो जाएगा. एंड गिविंग ए क्वेश्चन,
that you should divide this by 3, then you can find out remainder is 0 or not. अब divisibility by 5, अब देखिए अगर लास्ट में इफ वन डिजिट इज आइदर वंस डिजिट है, वन डिजिट नहीं वंस डिजिट है, ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। वंस डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, जैसे ये फर्स्ट डिजिट वंस डिजिट है, वंस, इसीलिए हमने लिखा है OTH, OT मीन्स वंस डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो सब नंबर डिविजिबल होगा। 0 चाहे 5 वो आपका 5 से डिवाइजर हो जाएगा। 0 है 5 2 10, 5 है 5 5 30, 0 है 5 6 30, रिमाइंडर शुड बी 0। अब 6 देखिए, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 में क्या है 0 होना चाहिए तो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड हो तब जाके 6 से डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड हो गया, और 3 का क्या नंबर ये दिया, या 3 का दिया हुआ है, यानी लास्ट में 0 2 4 6 8 भी हो और उसका सम भी जो 3 से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए 24 36 54 60। अब देखिए लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, लास्ट में क्या है इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, और 2 + 4 6 है, 6 किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड हो सकता है। अब ये देखिए 6 0 है, 0 क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है, और 6 + 0 6 है, 3 से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड हो सकता है। डिवीजन 9 देखिए, 9 कैसे डिवाइड होता है इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, ये नंबर दिया हुआ है, इसका सम यहाँ दिया हुआ है 18 है, 18 9 से डिवाइड होगा तो ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है। जो है ये चीजें जो है आपको स्टूडेंट से कहना चाहिए कि डिवाइड करके देखो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहां देखिए, अब रूल डिविजिबिलिटी रूल 6 है, इफ वन डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 10। एग्जाम्पल दिया हुआ करके देखिए। अब क्वेश्चन ये है, टिक यस एंड नो, ये रूल 6 तक हमने केवल बताया है, इसके अलावा हमने 4 तक यही है, इसलिए इस तक बताया गया है। अब क्या इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2, अब बताइए यस और नो। इट इज डिविजिबल बाय 6 की बात हो रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा 2 और 4 लिखिए यस और नो, 2 and 3 हमारे हिसाब से यस होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मैं दे देता हूँ। अब यहाँ पर इसका मतलब कि टीचर्स शुड अंडरस्टैंड वेदर द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और नॉट। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है ये 4 क्वेश्चन 3, राइट द प्राइम फैक्टर बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर फैक्टर। अब इसको आप फैक्टर बनाइए और इसका जो प्राइम फैक्टर लिखिए। इसका जो है हिंट दिया है, फैक्टर इज रिपीटेड मोर देन 1 इट शुड बी कंसीडर वंस ओनली। फैक्टर 96 देखिए, अब इसका यहाँ दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1 2 and 3। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।